policy of zero tolerance against terrorism, which is being followed by the central government. Government is committed to relentlessly pursuing the policy of curbing the activities of secessionist organizations, which are a threat to unity and integrity of the country. The National Investigation Agency and Enforcement Directorate are taking strong action against these organizations, the details of which are being shared with you from time to time. इसी उद्देश्य से 28 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी JNK को भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया था। उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जमाते इस्लामी JNK जमाते इस्लामी हिंद से बिल्कुल पृथक संगठन है। 1953 से इसका अलग संविधान है और कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमाते इस्लामी JNK के द्वारा ही एक प्रकार से खड़ा किया गया और हर प्रकार की सहायता हिजबुल मुजाहिदीन को इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है, जैसे रिक्रूट्स, फंडिंग, shelter, logistics इत्यादि. The organization which has been declared unlawful today, that is the Jammu and Kashmir Liberation Front, led by Muhammad Yasin Malik, has spearheaded the separatist ideology in the valley, and it has been at the forefront of separatist activities and violence since 1988. Murders of Kashmiri Pandits by JKLF in 1989 had triggered their exodus from the valley. And Muhammad Yasin Malik was the mastermind behind the purging of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley and was responsible for their genocide. JKLF के विरुद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी, का अपहरण सम्मिलित हैं। साथ ही यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है। JKLF चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लिप्त रहा है। The activities of JKLF pose a serious threat to the security of the country and are prejudicial to the territorial integrity and sovereignty of India. This organization has been actively and continuously encouraging feelings of enmity and hatred against the lawfully established government and has been indulging in armed rebellion. 37 FIRs have been registered by J&K police against JKLF. These include the case of murder of IAF personnel. In addition, there are 2 cases which are being investigated by CBI, including the case of murder of IAF personnel. NIA has also registered a case which is under investigation, and it is evident from these that JKLF continues to be actively engaged in supporting and inciting secessionism and terrorism, including terror financing. In this regard, I would also like to mention that a large number of secessionist leaders
were being provided security by the state. This matter has been reviewed, and after review, security of many such persons has been withdrawn, and this process of review will continue further. Thank you. तो 1988 से ही आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है JKLF। इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या में शामिल रहा। Been involved in and continue to engage in activities which are prejudicial to the integrity and sovereignty of the country. Its declared objective has been to achieve independence and create a separate country, including the Pakistan-occupied Kashmir, through armed struggle. लगाई गई है, उसी की जानकारी दे रहे थे गृह सचिव, जिनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि 1988 से ही आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है JKLF। इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या में शामिल रहा JKLF। इसके अलावा जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत से मामले JKLF के खिलाफ दर्ज हैं और लगातार हिंसा को बढ़ावा देने में और फंडिंग करता रहा है आतंकवाद की, और इसी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। राहुल सिन्हा लगातार जी न्यूज रूम से हमें इस पर और जानकारी दे रहे हैं। राहुल सिन्हा, पूरा इतिहास बता दिया गया किस तरह से 1988 से लेकर अब तक आतंकवाद को, हिंसा को। चलिए कि कश्मीर में ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह होगा, क्योंकि फिलहाल इलेक्शंस होने हैं और पिछले कुछ दिनों में अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता जो थे यासिन मलिक, वो तमाम लोग इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर जो बैन लगाया गया है उसको हटवाया जाए और इसको लेकर के एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पर यह है कि दक्षिण कश्मीर में ये लोग एक्टिविस्ट के नाम पर टेररिस्ट का काम कर रहे थे, ये रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ये पत्थरबाजों तक पैसा पहुंचा रहे थे और ये फेस सेविंग करते हुए अपना दिल्ली से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर ये बताते थे कि देखिए हम तो सिर्फ एक्टिविस्ट हैं, आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब तक कश्मीर में जितना डिस्टर्बेंस हुआ है लगातार, चाहे बुरहान वानी के बाद हो या फिर अभी तक की स्थिति हो, बार बार ये बंद का कॉल करके कश्मीर के अर्थव्यवस्था को चौपट खत्म करने का काम करते रहे, उन नौजवान लड़कों के हाथों में पत्थर थमाते रहे, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे। लेकिन ताज्जुब की बात मीमांसा यह है कि पिछले 30 साल पहले जो काम होना चाहिए था वो काम अब हो रहा है। यासिन मलिक के खिलाफ तमाम ऐसे आपराधिक मामले हैं, तमाम ऐसे आतंकवादी मामले हैं जिस पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कुछ दिन पहले अनंतनाग जब मैं गया था, वहां देखा था एक पिक्चर हॉल था वहां का, जो कि एक सिख का था, उस पर इसने कब्जा करके वहां पर अपने दावे पेश किए और ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज थी जिन पर इन लोगों ने वहां पर दावे पेश करके, दावा करके, जबरदस्ती कब्जा करके लोगों को बेदखल किया है। तो ऐसी स्थिति में ये कदम, मैं खास तौर से बार बार बोल रहा हूं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं जो लोकसभा के होने वाले हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक साबित होगा, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके या तो इलेक्शंस को टलवाया जाए या फिर सरकार पर दबाव बनाया जाए कि देखिए आप जब तक जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध नहीं हटाते हैं या फिर हुर्रियत के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर रोक नहीं लगाते हैं तो हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। और राहुल, आपने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप खुद कश्मीर में गए हैं और बहुत ही बारीकी से आपने समझा है किस तरह से ये फंडिंग होती है और बहुत ही ये बड़ा कदम जो कि सरकार ने आज उठाया है कश्मीर के अलगाववादियों के खिलाफ, ये बड़ा फैसला लेते हुए यासीन मलिक और उसके संगठन JKLF पर बैन लगा दिया है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें दे दें हमें ये बड़ी जानकारी। बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो कि सरकार की ओर से उठाया गया है। JKLF जो कि अलगाववादी संगठन है जम्मू कश्मीर में और उसके प्रमुख यासीन मलिक, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि एक ही महीने में ये दूसरा ऐसा अलगाववादी संगठन है जिस पर पाबंदी लगाई गई है। फरवरी के ही महीने में हमने देखा जमात इस्लामी पर पहले बैन लगाया गया और JKLF दूसरा संगठन जिस पर पाबंदी लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। ये अहम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया है। तो JKLF पर ये बैन, ये पाबंदी बहुत ही बड़ा और सकारात्मक कदम सरकार का। 28 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी JNK को भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया था।
उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जमात इस्लामी JNK जमात इस्लामी हिंद से बिल्कुल पृथक संगठन है। 1953 से इसका अलग संविधान है और कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी JNK के द्वारा ही एक प्रकार से खड़ा किया गया और हर प्रकार की सहायता हिजबुल मुजाहिदीन को इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है, जैसे रिक्रूट्स, फंडिंग, शेल्टर, लॉजिस्टिक्स इत्यादि। The organization which has been declared unlawful today, that is the Jammu and Kashmir Liberation Front, led by Muhammad Yasin Malik, has spearheaded the separatist ideology in the valley, and it has been at the forefront of separatist activities and violence since 1988. Murders of Kashmiri Pandits by JKLF in 1989 had triggered their exodus from the valley. And Muhammad Yasin Malik was the mastermind behind the purging of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley and was responsible for their genocide. कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री VP सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी, का अपहरण सम्मिलित हैं। साथ ही यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है। JKLF चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से पाबंदी लगा दी गई है। और देखिए अब ये पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इस प्रतिबंध से क्या हासिल होगा। यासीन मलिक ने तो बहुत पहले हिंसा छोड़ दी थी। आपको याद होगा जब जमात इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगाया था तब भी सवाल उठाए थे महबूबा मुफ्ती ने, ये कहते हुए कि ये तो सामाजिक संगठन है, ये तो वहां पर स्कूल चलाता है घाटी में बच्चों के लिए। ये बातें कही गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से जब जमात इस्लामी, जिसके बारे में अभी भी जिक्र किया, गृह सचिव ने जानकारी दी किस तरह से उसके कनेक्शन है हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, किस तरह से फंडिंग होती है, किस तरह से हिंसा को, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर महबूबा मुफ्ती का यह रिएक्शन, सवाल उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। श्रीमान सर, राजनीतिक मजबूरी है। यह कश्मीर का दुर्भाग्य है कि कश्मीर में जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आधार कुछ है ही नहीं। अगर श्रीनगर को छोड़ दें तो उसके बाद दक्षिण कश्मीर में इन नेताओं के जाने की हिम्मत तक नहीं होती। और ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या यासिन मलिक जैसे लोगों को वो इसी तरीके से सपोर्ट करके अपना आधार तैयार कराते हैं और चुनाव में उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन ये आज जो कदम उठाया गया है उसका फर्क आपको अगले कुछ दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, जिससे जो ये नेता एक तो उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे वो बैकफुट पर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो पत्थरबाज, वो अलगाववादी जो कि दक्षिण कश्मीर में इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से सरकार को प्रेशराइज करके इलेक्शन को आगे किया जाए और फिर हिंसा की घटनाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उन पर एक बड़ी लगाम लगेगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से भी। मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जहां पर ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, वहां से रविंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र को मैं इस वक्त देख पा रही हूं टेलीविजन स्क्रीन पर। रविंद्र, बहुत ही बड़ा ये कदम कि एक ही महीने में 2 बड़े बड़े संगठन, जमात इस्लामी पर पहले बैन लगाया जाता है, अब JKLF पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये लगातार बहुत ही एक्टिव मोड में रही है सरकार और NIA जैसी एजेंसियों को हमने देखा किस तरह से लगातार ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही थी। ठिकानों पर जा जाकर सबूत जुटाने की जो कोशिश थी वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी। देखिए मीमांसा, मोदी सरकार की रणनीतियां काफी एकदम स्पष्ट थी।
पहले सरकार ने ये तय कर लिया था कि क्या हम पाकिस्तान से लड़े या फिर घर के अंदर जो अलगाववादी आतंकवादी हैं उनसे पहले मुकाबला करें। जाहिर तौर पर दोनों तरफ से रणनीति बनाई गई कि पाकिस्तान को भी हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन उससे बड़ा जो जरूरी कार्रवाई थी घर के अंदर, कश्मीर में अंदर। आप देखिए जमाते इस्लाम, वो मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन जिसे महबूबा मुफ्ती कह रही है कि सामाजिक संगठन है, ये अलगाववाद आतंकवाद के बीज बोने वाला संगठन है, उस पर प्रतिबंध लगा। उसके बाद जो आतंकवादी संगठन था, जैसा कि होम सेक्रेटरी ने भी कहा, कई मर्डर में ये खुद ही शामिल रहा इस ऑर्गेनाइजेशन, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके पहले आप देखिए 35A, धारा 35A के तहत जो सीमा पर है उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। उससे पहले आप जाइए, लद्दाख को एक तरह से सेमी ऑटोनोमस कमिश्नरी घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं कश्मीर को पूरी तरह से भारत का अंग है, उसे और साबित करना है कि वहां जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि ये भारत का अंग है और रहेगा। आपको खिलाफ, अगर इसके खिलाफ आप कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मोदी सरकार करेगी, जो पहले से नहीं होता रहा। जाहिर तौर पर आपने कई बार सवाल पूछा, कई उस पर रिएक्शन भी आएंगे कि 30 साल से ऐसा क्यों नहीं प्रतिबंध लगा। जाहिर तौर पर उसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जो पहले की सरकारों ने शायद नहीं दिखाई या दिखाने की वैसी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि कश्मीर में अगर इस तरह के करेंगे तो उसका प्रभाव देश के दूसरे हिस्सों में एक खास वोट बैंक के ऊपर पड़ेगा और उनकी जो सियासत है उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर सियासत अलग है, देश की सुरक्षा अलग है, और इसी के कारण से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि पहले एक विचारधारा संगठन, उस पर प्रतिबंध, और उसके बाद जो अलगाववादी आतंकवादी संगठन है उस पर प्रतिबंध। और इसका आप देखिए कि आगे भी आने वाले दिनों में कई और भी कार्रवाई होंगी, चाहे उस चुनाव के दरमियान ही आपको मिलेगी। विपक्षी दल भले ही कहेंगे कि सियासत में चुनाव पे फायदा उठाने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा और भारत की अखंडता और अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए है। जी, और राहुल तो खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। और राहुल, आप तो बहुत अच्छी तरह से इस नेक्सस को समझते हैं, किस तरह से ये लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट दी जाती है आतंकवादियों को, किस तरह से जो फंडिंग की जाती है, सऊदी अरेबिया से पैसा आता है, पाकिस्तान से पैसा आता है, पत्थरबाजों के हाथ में थमा दिया जाता है, कैसे फिर इस हिंसा की आग को और भड़काया जाता है, ये समझाइए आप दर्शकों को, किस तरह से ये किया जा रहा है। देखिए, एक चीज बड़ी तय है कि कश्मीर को आजाद कराने के नाम पर यहाँ इन अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने पूरे उसको मजहबी रंग देकर, कट्टरपंथ के रंग दे करके फिर युवाओं को उसकी तरफ आगे बढ़ाया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने किया, जिसने मजहब की आड़ लेकर के वहां के युवाओं के अंदर जो जम्मू कश्मीर में पैसा आ रहा था सऊदी अरब से, हवाला के जरिए पाकिस्तान से, उस पैसे का इस्तेमाल उनको भड़काने में, उनको भारत के खिलाफ पत्थर उठाने में किया, हथियार उठवाने में कराया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यासिन मलिक जैसे नेताओं ने, और यासिन मलिक जैसे आतंकवादी की कहूंगा मैं, और उसके साथ साथ हुर्रियत के जो नेता हैं, अलगाववादी नेता, उन लोगों ने किया। वो लोग एक्टिविस्ट की शक्ल बना करके कश्मीर को लगातार डिस्टर्ब करते रहे। चूंकि ये एक्टिविस्ट की शक्ल बनाए हुए थे, बाकायदा सिक्योरिटी लिए हुए थे, इस वजह से इन लोगों ने वहां पर अपने जो पैर थे इस तरीके से जमाए कि आंदोलन, मूवमेंट की शक्ल लेकर के आतंकवादियों तक हथियार पहुंचवाना, उन तक पैसा पहुंचवाना, ये इनका काम सबसे ज्यादा रहा है। अब जो स्थिति हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, आप देखिए, नोट कीजिए, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, और खासतौर से जमात में जब से बैन लगाया गया उसके बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में बहुत तेजी से एकदम से घटी हैं। और जो अभी दक्षिण कश्मीर के हालात हैं उसे देख करके लगता है आज जो फैसला लिया गया है उसके बाद सुरक्षा बलों का मनोबल सबसे ऊपर होगा, क्योंकि 14 तारीख को पुलवामा का जो हादसा हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा बल इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि जो उनके जहन में जो था वो ये बात थी कि आखिर उन्हीं लोगों की सुरक्षा में उन्हें तैनात होना पड़ता है जो लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 2018 में एनआईए ने जो एफआईआर की और इनकी टेरर फंडिंग थी, जो बाहर से हवाला से पैसा आ रहा था, उस पर लगाम कसी। उसके बाद इन अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ली गई, जिससे एक बड़ा कड़ा संदेश गया। और अब जमात के बाद यासिन मलिक के संगठन पर बैन लगाना, ये कश्मीर के लिए एक बहुत सुकून वाली खबर है। और मैं मीमान साहब फिर कह दूं, दक्षिण कश्मीर में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इनसे त्रस्त हैं, बुरी तरीके से परेशान हैं, लेकिन इनका जो नेक्सस है उसकी वजह से कह नहीं पाते। फिर भी राहुल, हैरानी होती है कि महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता हैं वो अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रविंद्र, सवाल की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? गृह सचिव ने पूरा ब्यौरा दिया है इनके गुनाहों का, इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या में शामिल, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में शामिल, और यह सिलसिला 1988 से शुरू हुआ था, अब तक जारी है। और कौन सी फेहरिस्त अब सौंपनी पड़ेगी ऐसे नेताओं को जो आज की तारीख में भी ये सवाल उठा रहे हैं?
मेहमान साहब, शायद महबूबा भूल गई कि उन्हीं के परिवार के सदस्य का अपहरण किया गया था और उसमें शामिल थे यही संगठन, यही यासीन मलिक और जेकेएलएफ के लोग शामिल थे, ऐसा कहा जाता है। और इस तरह के होम सेक्रेटरी ने भी कहा, उसको भूल गई और उसको कह रही है, उन्होंने ये भी भूल गई महबूबा मुफ्ती कि आज ही 10 साल के बच्चे को अगर कोई अपनी ढाल बनाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उसको भूल जाती है। जमात इस्लाम को कहती है कि सामाजिक संगठन जाहिर तौर पर अपनी सियासत कर रही है, अपनी सियासत चमकाने के लिए भारत की सुरक्षा और कश्मीर की सुरक्षा, कश्मीर के बारे में कुछ नहीं सोच रही है महबूबा। और आप देखिए कि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही रविंद्र रैना ने साफ तौर पर कहा कि क्यों छोड़ना पड़ा था, जाहिर तौर पर उनकी अलगाववादी और नीतियां जो थी, आतंकवादियों को समर्थक की जो नीतियां थी, पाकिस्तान परस्त नीतियां थी, उसी कारण से बीजेपी से ये साथ छूटा था। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो चाहती हैं कि उन्हीं अलगाववादियों के सहारे, उन्हीं आतंकवादियों के सहारे वो अपना वोट बैंक मजबूत करे, इसलिए बयान देती है, जबकि भूल जाती है कि उन्हीं के घर के लोगों का अपहरण ऐसे